A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue this chapter number second of your book, Indian Constitution at Work, and the name of your chapter is, Rights in the Indian Constitution. In our last class, we discussed about the DPSP, Directive Principles of the State Policies, and what is DPSP? DPSP is Directive Principles of State Policy, is the guidelines given by our Constituent Assembly. Okay, what ideas, what guidelines we should adopt, our future government will adopt for the development of the nation, for the development of the people. Okay, so these are the guidelines given by directive principles are basically the guidelines given by the constitution. Okay, this is the separate list of policy guidelines which is included in the constitution. It is not justiciable. Okay, लाइक कोई फोर्सफुली आप पे इन्फोर्स नहीं कर सकता, आपको ये सब करना ही करना है, या फिर अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. These are the non-justiciable. These are just guidelines. Okay, so now our today's topic is relationship between fundamental rights and the directive principles. So we know what are our fundamental rights. These are the basic rights given by our constitution. Okay, if in case if these rights violate, then like we can move to the court and ask for the justice. Fundamental rights are given by our constitution to protect and guarantee the constitution of the country की protection, country की protection के लिए हमारे constitution की protection के लिए हमारे पास ये fundamental rights हैं. So what are the relationship between DPSP, directive principles, and fundamental rights? It is possible to see both fundamental rights and directive principles as complementary to each other. Fundamental rights restrain the government from doing certain things, while directive principles exhort the government to do certain things. Okay, अब क्या होता है फंडामेंटल राइट्स, नॉर्मली हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो दोनों मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. सो डायरेक्टिव फंडामेंटल प्रिंसिपल्स किसे सपोर्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अब कुछ गवर्नमेंट को रेस्ट्रेन करते हैं कि आप यू कैन नॉट डू सम थिंग्स, लाइक यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स, आपके पास ये राइट्स नहीं है, आप लोगों के राइट्स वायलेट नहीं कर सकते हो. मतलब स्पेशली हमें लोगों की प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स में होती है. बट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करता है, एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स. एक्सॉर्ट का मीनिंग होता है टू सपोर्ट. ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कुछ चीज कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ थिंग्स जो है गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, फॉलो कर सकती है. फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, वाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोसाइटी की वेलबींग को इंश्योर करती है कि हम सोसाइटी को और कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे अच्छी बना सकते हैं. So when government intends to implement directive principles of state policy, it can come in conflict with the fundamental rights of the citizen, and sometimes it happens कि फंडामेंटल राइट्स और जब गवर्नमेंट ट्राई करती है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सिटीजन्स के वायलेट होते हैं. ओके, एंड द प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट sought to pass laws to abolish जमींदारी सिस्टम. ठीक है, और ये प्रॉब्लम हमें कब देखने को मिली थी, फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहा. जमींदारी सिस्टम का जो ये अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये वन ऑफ द गाइडलाइंस थी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. ठीक है, और गवर्नमेंट को ये चैलेंज फेस करना पड़ा था एट दैट टाइम, लाइक कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस कि फंडामेंटल राइट्स जो है एट दैट टाइम, राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट था. ठीक है, और सिटीजन्स के राइट टू प्रॉपर्टी जो है उस टाइम पे अबॉलिश हो रही थी. So these measures were opposed on the ground that they violated right to property.
However, keeping in mind the social needs that are greater than the individual interests, the government amended the constitution to give effect to the directive principles of state policy. Now remember this thing. Now here government implement this guideline. क्यों इम्प्लीमेंट किया गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन कि हमें जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना है, और इससे जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट भी हो रहा था इंडिविजुअल्स का, फिर भी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो गाइडलाइन थी जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने का, उसको अडॉप्ट किया। व्हाई? फॉर द सोशल नीड्स। अब फॉर एग्जाम्पल नाउ देखो यहाँ पे अब बहुत सारी क्या है, जमीन है, अलग अलग जमींदार जो है लैंड इन जमीन को क्या कर रहे हैं, वो इनको ओन कर रहे हैं। नाउ गवर्नमेंट वांट कि यहाँ से जो है एक रेलवे लाइन क्रॉस होनी चाहिए एंड इट इज सुटेबल फॉर एवरीबडी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे कैसे बोल सकती है कि यहाँ से रेलवे लाइन गुजरेगी, ये तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड है, हमारी राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। बट यहाँ पे सोशल नीड्स ज्यादा थी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा सोशल नीड्स का हमने यहाँ गवर्नमेंट ने ध्यान रखा और अमेंडमेंट किया, राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड किया इन्होंने। ठीक है, 44th अमेंडमेंट था 1978 में हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, इसको लीगल राइट बना दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को। वहां फंडामेंटल राइट्स नहीं था ये, अब लीगल राइट बन चुका था। अब लीगल राइट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, गवर्नमेंट जो है लीगल राइट को चेंज कर सकती है, ठीक है, उसमें चेंजेस ला सकती है। So for the social needs, societal needs, government amended the constitution and follow this guideline of directive principle of state policy of the to abolish the zamindari system, and this led to a long battle. Obviously बहुत बड़ी battle थी ये। The executive and the judiciary took different positions. The government claimed that rights can be abridged for giving effect to directive principles. अब देखो एग्जीक्यूटिव के अलग पर्सपेक्टिव्स थे, ठीक है, जुडिशरी अलग पोजीशंस में थी, गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही थी कि यहाँ पे तो राइट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ये चीज भी बोल रही थी। राइट्स जो है अब क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉर्टेंड हो जाएंगे, वायलेट होने लग जाएंगे। तो सबके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स थे एंड दिस आर्गुमेंट अज्यूम दैट राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड इस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला था कि समटाइम्स क्या है, वेलफेयर लोगों की भलाई के लिए, सोशल नीड्स की डेवलपमेंट में राइट्स जो है एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस मतलब हर्डल बन सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम बन सकती है। So on the other hand, the court held the view that fundamental rights were so important and sacred that they cannot be limited even for purposes of implementing directive principles. Now court के अब different viewpoints थे। अब वो बोल रहे थे कि कोर्ट बोल रहा था कि फंडामेंटल राइट्स तो हमारी मतलब जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए गीता कुरान है, ठीक है, जितनी सेक्रेड हमारे लिए हमारी रिलीजियस टेक्स्ट है, हमारा फेथ है, उतना ही फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर सो सेक्रेड एंड कुछ पर्पसेस के लिए या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी लिमिटेड, उसको हम लिमिट नहीं दे सकते हैं, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था इस चीज का, ठीक है। सो दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट, दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, अगर फंडामेंटल राइट को उस टाइम पे रिमूव करना था तो अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत थी। So the government was saying that parliament can amend any part of the constitution. The court was saying that the parliament cannot make an amendment that violated fundamental rights. अब ये देखो ये कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, ये बैटल चलने लग गया था कि अब कोर्ट बोल रही थी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते वो, और आपके वहीं पे गवर्नमेंट बोल रही थी कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को
वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। बट ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो बैटल था, कब सेटल हुआ था? जब सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, गो थ्रू इट, कभी टाइम मिले तो देखना। केशव नंदा भारती केस जो है, इस केस को जब सेटल किया था ना, उस टाइम पे ये जो केस है आपका सेटल डाउन हुआ था। ठीक है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जज ये कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में, ये खत्म हुआ। एंड इन दिस केस द कोर्ट सेड देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and these cannot be changed by parliament. We shall discuss this in greater detail in chapter 9 the constitution and as a living document. ठीक है, अब आपको मेन जस्ट पता चल गया क्या क्या हुआ था, कि अब मेन जो है फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती है। कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दे दिया था। इवन केशव नंदा भारती केस में भी ये जो डिस्प्यूट था सेटल हो गया था। बट इससे पहले अब हम देखेंगे ये राइट टू प्रॉपर्टी था क्या। So behind the controversy about the relationship between rights and directive principles, and before right to property, I would like to tell you about the relationship. ये जो कुछ directive principles के goals थे, policies थे, क्या-क्या goals रहे हैं, क्या policies थी, just look at these goals. Welfare of the people, social and economic justice, ठीक है, raising the standard of living, equitable distribution of resources, की लोगों का स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें रेज करना है, रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इंटरनेशनल पीस में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस जरूरी है। पॉलिसीज क्या क्या थी? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। कि अब सिविल कोड क्या होता है? सिविल कोड का मतलब होता है प्राइवेट लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, कि एक प्राइवेट लॉ होना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बोला। Prohibition of consumption of alcoholic liquor. This is also mentioned in the guidelines, in the directive principles, like we should prohibit, we should abolish the consumption of the alcoholic liquor. Liquor का prohibition होना चाहिए, ban होना चाहिए। We should promote cottage industries. Cottage industries क्या होती है? Manufacturing activities operated at home. ऐसी activities, ऐसी manufacturing एक्टिविटीज जो घर से हम ऑपरेट कर सकते हैं, उनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। लाइक आप बास्केट वीविंग बोल दो या फूड प्रोडक्ट्स बोल दो, ये सारे आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज के एग्जांपल्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल जैसे बकरी, गाय, ठीक है, भैंस हो गई, ये सारे कैटल्स हैं आपके। तो स्लॉटर नहीं होना चाहिए, इनको आप मार नहीं सकते हो, ठीक है, फॉर द कंजम्पशन पर्पस और फॉर द making of products. You can't slaughter these useful cattle. Okay, promotion of village पंचायत को प्रमोट करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेसी आए, ज्यादा से ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। एंड नॉन जस्टिसिएबल राइट्स, वो क्या थे नॉन जस्टिसिएबल राइट्स? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉन जस्टिसिएबल राइट्स आर दोज राइट्स दैट that are not capable of being decided by legal principalities or by judge or by the court of justice, कि हम उसको जो rights हैं उनको justice कर दे सके। like adequate livelihood, क्या होना चाहिए adequate livelihood? अब किसी person के according जो है कि बंगला होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ये सारी चीजें, बहुत अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, 4-4 गाड़ियां होनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड वो होती है, बट कुछ लोगों के पास कि एक छोटा सा घर हो, ठीक है, आपका मतलब प्रॉपर सफिशिएंट इनकम हो, जिससे कि हम अपना घर का गुजारा निकाल सकें, ठीक है, एक व्हीकल हो, कुछ लोगों के लिए वो होती है एक एडिक्वेट लाइवलीहुड। तो ये आपका नॉन जस्टिसिएबल राइट है, एडिक्वेट लाइवलीहुड। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, इक्वल पे होना चाहिए मैन और वुमेन के लिए। दिस इज ऑल्सो नॉट मेंशन, दिस इज ऑल्सो नॉट जस्टिसिएबल राइट। Sometimes what happened in some organization, for the same work women paid less as compared to the men, ठीक है, दोनों का एक ही वर्क है, एक ही वर्क प्रोफाइल है, बट जस्ट बिकॉज दे आर वुमेन, ठीक है, तो उनको जो है सैलरी कम मिलती है।
तो sometimes it happens. Right against economic exploitation, economic exploitations होती है तो ये भी आपका justiciable right नहीं है. Right to work is also not justiciable right, non-justiciable right है. Early childhood care and education to children below the age of 6 years. Okay, so these are like our rights, but these are not our fundamental rights. These are our non-justiciable rights. हमारे पास rights हैं इन सब सारी चीजों के. Some legal laws are also there, but these are not justiciable नहीं है. ओके, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 31 में एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका राइट टू प्रॉपर्टी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंशन किया था. क्या था कि अब यहाँ पे डिस्प्यूट अराइज हो गया था 1970s के टाइम पे कि अब गवर्नमेंट को सोशल नीड्स के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए अब अबॉलिश करना पड़ा जमींदारी सिस्टम. और अब आप अबॉलिश नहीं कर सकते जमींदारी सिस्टम, बिकॉज अगर आप जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर रहे हो इट मीन्स आप पर्सन की प्रॉपर्टी पे क्या कर रहे हो कि वो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. अब आपको रेलवे लाइन लेनी है तो आपको उस पर्सन की प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो उसका जो राइट है ये वायलेट हो रहा है. right, so the controversy about the relationship between the directive principles and the rights, there was one important reason in the constitution. Originally there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property, but the constitution made it clear that property could be taken away by the government for public welfare. अब देखो उसने तो बोल दिया कि ये मतलब हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है, बट फंडामेंटल राइट में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ था कि अ पर्सन कैन एक्वायर, पॉसेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी. ये आपका राइट है. ऐसा नहीं है कि एक्वायर नहीं कर सकते, यहाँ पे आप जमीन नहीं ले सकते, यहाँ पे पोसेस नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी को. नो, यू हैव दिस राइट. अगर और इसको कोई वायलेट करता है तो आप आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. बट गवर्नमेंट जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रॉपर्टी को ले सकती है. एंड सिंस 1950 government made many laws that limited the right to property, and this right was at the center of the long debate over the relationship between the rights and directive principles. इतना long like 25-26 years तक ये बैटल चला था. बहुत सारे गवर्नमेंट में लिमिटेशंस डाल दी थी राइट टू प्रॉपर्टी को लेके. एंड फाइनली व्हाट हैपेंड इन 1973, द सुप्रीम कोर्ट gave a decision that the right to property was not the part of basic structure of the constitution, and therefore parliament had power to abridge the right of an amendment. कि आप फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हो जस्ट फॉर द वन सिंगल टाइम. एंड इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, because for the welfare of the people. And it is also mentioned in our constitution कि you can acquire, access and maintain your property, but but government can take your property for the public welfare. public welfare के लिए ये property government जो है आपसे ले सकती है. 1973 में government ने finally ये decision लिया. एंड फाइनली 1978 में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ आपका टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इट इनटू अ सिंपल लीगल राइट. आर्टिकल 308, पहले आर्टिकल 31 था आपका राइट टू प्रॉपर्टी. नाउ व्हाट government did, government amend the constitution. 44th अमेंडमेंट में हुआ था, फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया गया था, सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से, और उसे एक सिंपल लीगल राइट बना दिया. अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 300A. okay, and now what difference do you think this change of status makes to the right to property? Obviously now it becomes a legal right or an ordinary right. In the starting of the chapter we talked about the difference between we studied about the difference between the fundamental right and the ordinary law. कि fundamental rights और एक ordinary law में क्या difference है. ठीक है, एक तो fundamental rights जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है, इवन लीगल राइट्स भी जो हैं प्रोटेक्टेड होते हैं
ठीक है, और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स भी प्रोटेक्टेड होते हैं और इन्फोर्स करते हैं ऑर्डिनरी लॉज, बट फंडामेंटल राइट्स ज्यादा प्रोटेक्शन चाहते हैं। ऑर्डिनरी राइट्स को सबसे बड़ा जो है, ऑर्डिनरी राइट्स को कौन चेंज कर सकता है? गवर्नमेंट कैन, गवर्नमेंट में बी चेंज, एंड हमारी गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनरी राइट्स को, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को चेंज कर सकती है, बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो इससे अब डेवलपमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी जब ये आया, अमेंडमेंट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तो और इसे लीगल राइट बनाया गया, तो अंडर दिस राइट टू प्रॉपर्टी और अंडर दिस व्हाट हैपेंड, जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ था, तो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इल ट्रीटमेंट हो रहा था, वो काफी हद तक रिमूव हो चुका था। ठीक है, और लोगों की जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होने लग गए थे, कि अब लोग खुद की प्रॉपर्टी वगैरह भी परचेज करने लग गए थे, बट सोसाइटल नीड्स के लिए ऐसा नहीं था कि जहां चाहे जहां मन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नहीं, सोसाइटल नीड्स काफी इंक्रीज हुए, डेवलपमेंट काफी इंक्रीज हुआ, काफी इम्प्रूव हुआ था। Okay, so now class, this is all about this chapter. Go through this chapter, and if you face any kind of problem, do let me know, and ताकि हम ये जो right to, और भी हमारे राइट्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या चेंजेस नहीं आए, वी विल टॉक अबाउट फर्दर इन दिस बुक। ओके, सो केशव नंदा भारती केस जो है, वी विल डिस्कस इट टुमारो, क्या था, एंड ऑल्सो आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर, एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, यू मे आस्क मी टुमारो। Okay, this is all about this chapter. Go through it, and if you face any problem, do let me know. Thank you so much for joining the class. Happy learning, keep learning. Bye bye, take care.